Define electric field, please. Please unmute yourself. Ma'am, it's basically electric field lines with the electric field. फरहान, आपको आइडिया है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? See, if we have a charge somewhere here, okay, and how do we draw it? It is the space around the charge where its effect can be experienced. Area or space. Field means area. Field means area. And electric word is related to charge. So space or area around the charge where its effect can be experienced is called electric field. So this is a charge and this is the field of this charge. Means if any charge enters the field, then that charge will experience attractive or repulsive force, right? And what if I want to draw, what if I want to find the electric field intensity at a certain point? If I want to find the electric field intensity at a certain point P, which is a distance R from the source charge, then how do we find it? There is a formula. And how do we write it? E is equal to KQ upon R square. Clear? And what else? Let the charge here be Q naught. There will be force of, electrostatic force between these two charges. And we write the force as Q naught times the electric field of source charge. This we had done. And we can also write this electric field intensity in vector form. And if we write electric field intensity in vector form, we write like this: KQ by R square. KQ by R cube into R. Yes. Or we can write, because R cap is vector R by R, so we can write R cube and vector R. So this is the vector notation of electric field intensity. And this is the electric field intensity for any source charge Q at a distance R from it. And this is the force experienced by the test charge that enters the, electric field of the source charge. So it is Q naught times E. So from here we can, write the unit of electric field intensity as well, because E is equal to F upon Q naught. E is equal to F upon Q naught, and F is measured in Newton. Charge is measured in Coulomb. The unit of electric field intensity is Newton per Coulomb. Right? Yes, sir. This we had, done in our previous classes about electric field. Please write all the formulas first. Mute yourself, Priyanshi, and write all these formulas first so that we can start the numerical problems. Write the formulas, beta. Priyanshi, write the formulas. Yes, ma'am, I'm writing. Farhan, you there? फरहान, आप सामने आइए बेटा. आपने ये किया हुआ है सब कुछ? हाँ जी मैम. आपको आइडिया है, बेसिक आइडिया? Yes. Here we have 2-point charges, 4 picocoulomb and plus 1 picocoulomb, and they are separated by a certain distance, right? 2 meters in air. Find the point on the line joining the charges at which the net electric field of the system is 0. So first of all, just, mark the charges first. Let's locate them. So we have 4 picocoulomb here and plus 1 picocoulomb here, and they are separated by distance 2 meters in air. So we have to find the point on the line joining the charges at which the net electric field of the system is 0. So we'll consider a point somewhere here where the net electric field density is 0. Okay, at this point P, the net electric field density is 0. See, this type of question we have done yesterday as well, है ना? Offline class में भी किया था, है ना? तो जिस चार्ज की वैल्यू ज्यादा होती है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होता है, राइट? और लाइक चार्जेस के केस में हाउ डू वी ड्रॉ फील्ड लाइंस फॉर लाइक चार्जेस? लाइक चार्जेस के लिए फील्ड लाइंस कैसे बनती है? अगर दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड लाइक दिस, है ना? दिस इज हाउ वी ड्रॉ द फील्ड लाइंस, नो? और यहाँ पे एक चीज और बताई थी आपको कि जब हम लाइन, ये जो अलोंग द, जब व्हेन यू जॉइन द लाइन एंड यहाँ पे एक न्यूट्रल पॉइंट आता है,
and neutral point is the point where electric field intensity is 0. Right? ये कब होता है? like charges के केस में, है ना? न्यूट्रल पॉइंट कहाँ आएगा? उन दोनों चार्जेस के सेंटर में. राइट? अब कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले लेट्स राइट द चार्जेस. x लेट करके और फिर 2 minus x यस, वेरी गुड. distance x सेलेक्ट करके और 2 minus x. पिको कूलम में कितने कूलम होते हैं? 10 की पावर -12. Yes, 10 power minus 12 coulomb. And we can write Q2 as 1 picocoulomb. It is 10 power minus 12 coulomb. Okay, so let this distance be x meter. आपका जो AP है वो हमने x मीटर ले लिया, तो ये आपका हो जाएगा 2 minus x. You can do it. Okay, see, first find the electric field intensity because of the charge at A is even. So this is K Q1 by R1 square. If we consider this as R1 square, R1 and this as R2, so R1 square. So your K is 9 in 10 power 9 and your Q1 is this 4 picocoulomb and R1 is your X. R1 is X and R2 is 2 minus X. Right? And what is the direction of E1? Because 4 picocoulomb is a positive charge, right? So, and how do we find the direction of electric field intensity for the positive charge? Away from positive charge. So this would be the direction at point P for E1. And what is the direction, of the charge, electric field intensity? What is the direction of electric field intensity because of this charge? Plus 1 picocoulomb. Against, like in the opposite side. हाँ, 1 plus 1 है, वो भी पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे भी डायरेक्शन हाँ. अवे फ्रॉम +1 कूलम पिकोकूलम होगा. राइट? तो आप देख रहे हो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट कर रही हैं. बिकॉज ये अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट कर रही हैं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? सबट्रैक्ट. क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू सबट्रैक्ट these two. Please do it. Or we can do one more thing, because we have we can also equate them. We can write E1 is equal to E2, or we can write E1 minus E2 is equal to 0, because electric field intensity is 0. Right? Either you can write E1 minus E2 is equal to 0 because net electric field intensity at this point is 0. It is given to us, है ना? Or we can write E1 is equal to E2. So there are two ways of doing it. So E2 is KQ2 by R2 square. Just equate these two and you will get your X. KQ1 by X square is equal to KQ2 by X2 minus X whole square. के आपका कैंसिल हो जाएगा. Q1 के प्लेस पे हम 4 पिको कूलम लिखेंगे. दो यहाँ पे कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट नहीं थी बिकॉज 10 की पावर -12 अल्टीमेटली आपका कैंसिल होने वाला है अपॉन एक्स स्क्वायर. और Q2 के लिए वी कैन राइट 10 की पावर -12 अपॉन 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर. तो आपका ये -12 कैंसिल हो गया. अब इसको होल स्क्वायर टर्म में लिखोगे और यू कैन टेक द स्क्वायर रूट. by taking square root both sides we get 2 upon x is equal to 1 upon 2 minus x. Now cross multiply them. What value of x you have got? फरहान आपका हो गया बेटा? हाँ जी मैम. आंसर बताओ बेटा. अगर आपका हो जाता है ना कोई क्वेश्चन तो आप उसको रिस्पॉन्ड किया करो कि ऐसे कर लिया मैंने और मेरा ऐसे आया, तो क्लैरिटी हो जाती है हमें भी कि आपको आता है ये. ठीक है? ओके. सो x is 1.33 मीटर. आर यू गेटिंग द सेम आंसर? यस मैम. Yes, ma'am. ठीक है, तो कहाँ पे आएगा नेट आपका फील्ड इंटेंसिटी 0? कहाँ पे है? एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.33 मीटर फ्रॉम द चार्ज प्लस 4 पिको कूलम. नो? शुड आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ? Yes. Please read the question first.
2-point charges 0.2 microcoulomb and 0.4 microcoulomb are placed at a certain distance, at a distance of 0.15 meter. Calculate the electric field at the midpoint between the charges and a point on the line joining the two charges such that it is 0.05 meter away from the second charge and 0.15 meter away from the first charge. कैसे करेंगे? There are two parts in this question. पहले आपका 0.2 माइक्रोकूलम आएगा यहाँ पे, पॉजिटिव है, और फिर यू हैव वन मोर चार्ज प्लस 0.4 माइक्रोकूलम एंड डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस इज गिवन, इट इज 0. कितना गिवन है? 1 meter. 0.1 मीटर. ठीक है, करो. कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द मिड पॉइंट बिटवीन द चार्जेस. तो मिड पॉइंट कहाँ होगा? मिड पॉइंट इज समवेयर हियर. अगर आपका ये 0.1 मीटर है तो ये डिस्टेंस कितना हो गया यहां से? 0.2 से 0.1/2. लेबल कर देते हैं. 0.05 मीटर हो गया, और इससे यहां से भी 0.05 मीटर हो गया, राइट? करो. अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पे वी आर गोइंग टू सबट्रैक्ट दीज टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट विल गेट हियर एट दिस पॉइंट. सी, because both are at equal distance from the point O, right? O is the midpoint, no? तो आपका जो 0.2 माइक्रोकूलम है और 0.4 माइक्रोकूलम है, दोनों इक्वल डिस्टेंस पे हैं. तो जिस चार्ज की वैल्यू ग्रेटर होगी उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रॉन्गर होगा. मानते हो? हाँ. है ना? तो अगर आपका ये चार्ज Q2 है तो Q2 का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे स्ट्रॉन्गर आएगा बिकॉज इसकी वैल्यू ज्यादा है, और Q1 का कंपैरेटिवली कम आएगा. है ना? तो E नेट कैसे निकालेंगे हम? E नेट इज योर, बिकॉज अगेन वन मोर थिंग, डायरेक्शन फाइंड करेंगे. ए का डायरेक्शन क्या आएगा? पॉजिटिव है तो E1 is away from positive. यहाँ पे भी क्या आएगा? Away from positive. तो both are pointing in opposite directions. है ना? opposite direction. Opposite तो direction में subtract point कर रहे हैं तो E2 minus E1 करेंगे. ठीक है? तो K Q2 by R square, because we are keeping the distance same, no? It is at the midpoint. So we can write this distance as R. So your R is 0.05 meter. दोनों को हम R consider कर सकते हैं. And minus K Q1 by R square. Now take K upon R square common. In the bracket you will write Q2 minus Q1. Put the values now. What is the value of K? फरहान, K की वैल्यू क्या होती है बेटा? 9 into 10 की power 9. यूनिट? यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. फाइंड कर सकते हो फॉर्मूला से. अब ये माइक्रो कूलम है तो उसको 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कूलम में कन्वर्ट हो गया. माइनस Q1 इज 0.2 माइक्रो कूलम, तो वी कैन राइट दिस एज 0.2 into 10 की पावर -6. 10 की पावर -6 भी बाहर आ जाएगा और सॉल्व कर दो एंड गेट योर आंसर. और 0.4 माइनस 0.2 इज 0.2, और डिनोमिनेटर में आपके पास है 5 into 10 की पावर -2, तो वी कैन राइट 25 into 10 की पावर -4 स्क्वायर लेने के बाद. ऊपर आ गया 9 2 18, है ना? सॉल्व करो एंड गेट योर आंसर. वन 1.8 into 10 is power 9 minus 6 is 3, और नीचे आएगा आपका 25 into 10 is power -4 है तो ऊपर जाके +4 हो जाएगा. 10 की पावर 7 आ गया यहाँ पे, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका डेसिमल भी अगर यहाँ पे मतलब एक 10 यहाँ ले भी जाते हो अगर तो 10 की पावर 6 हो जाएगा. तो 18/25 into 10 is power 6 यूनिट इज न्यूटन पर कूलम. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट होती है ये. अब इसको डिवाइड करो एंड गेट योर आंसर. 0 पॉइंट किससे जाएगा? 180 है ये. 25 7 है ना? 175 होता है. 5 आ गया रिमाइंडर, फिर उसके बाद 25 2 0.72 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलम. और स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखोगे इसको?
7.2 into 10 raised to the power 5 न्यूटन पर कूलम. दिस इज द आंसर. ये कौन सा आंसर है? आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर है ये. ठीक है, क्लियर? कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. और डायरेक्शन क्या आएगी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की? टुवर्ड्स द टुवर्ड्स E2 और टुवर्ड्स E1? नेट ई की ही डायरेक्शन क्या है? towards E2, टुवर्ड्स E2. towards E2. यस, बिल्कुल. नेट ई की डायरेक्शन होगी आपकी जो E2 की है, बिकॉज E2 का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये ग्रेटर है इससे, है ना? वैसे भी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है सबट्रैक्ट करके, तो यहां से भी समझ आ रहा है कि ये बड़ा है. ठीक है, सेकेंड पार्ट करें. शुड आई क्लियर द स्क्रीन? Yes, sir. Second part में again we are considering the same charges. First charge is 0.2 microcoulomb and this is your 0.4 microcoulomb, but and the distance between these two charges we are taking as 0.1 meter. अब आपको ये बोल रहे हैं कि a point on the line joining the two charges, किसी भी पॉइंट पे लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस में जरूरी नहीं है कि वो सेंटर में कहीं हो, वो उसकी एक्सेस में कहीं पे भी हो सकता है, इस साइड कहीं पे भी हो सकता है वो पॉइंट. ठीक है, such that it is 0.05 मीटर अवे फ्रॉम द सेकेंड चार्ज. सेकेंड चार्ज आपका Q2 था, फर्स्ट चार्ज आपका क्या है? Q1 है. ठीक है, अब कितना डिस्टेंस है ये? 0.05 मीटर अवे फ्रॉम द सेकेंड चार्ज. सो सेकेंड चार्ज से 0.05 मतलब जितना ये डिस्टेंस है आपका 0.1, इसका हाफ डिस्टेंस और ज्यादा फ्रॉम द सेकेंड चार्ज. अब ये पॉइंट 0.05 इधर भी हो सकता है और 0.05 अंदर की तरफ भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है. अब देखते हैं, थोड़ा और क्लैरिटी हो जाएगी अगर हम पूरा रीड करेंगे तो. 0.15 मीटर अवे फ्रॉम द फर्स्ट चार्ज. फर्स्ट चार्ज से 0.15 मतलब 0.1 में 0.05 ऐड किया हुआ है. अगर आप 0.1 में 0.05 ऐड करते हो देन यू गेट 0.15, राइट? तो इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट इस तरफ कहीं पे है और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे फाइंड करनी है. ठीक है, अब हम कैसे करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड? अगेन सबसे पहले आप डायरेक्शंस फाइंड करेंगे. अब फर्स्ट चार्ज के लिए Q1 है, पॉजिटिव है, डायरेक्शन क्या आएगी? अवे फ्रॉम पॉजिटिव दिस 0.2 माइक्रोकूलम, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है वो अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज होती है. तो E1 आपका इस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा. ठीक है, सेकेंड चार्ज भी आपका पॉजिटिव है तो E2 भी आपका सेम तो डायरेक्शन. 0.1 कैसे आया? हाँ जी, 0.1 कैसे आया उन दोनों के बीच का डिस्टेंस? ये गिवन है ना आपको, क्वेश्चन में गिवन है अच्छा जो अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक आपको ना. ठीक है, क्लियर हो गया इतना? और कुछ पूछना है? बताओ. तो आपकी दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, तो वी आर गोइंग टू सिंपली फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड विल ऐड देम. ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, कुछ नहीं करना है आपको, ई नेट निकालना है. सो योर ई नेट इज E1 प्लस E2 दिस टाइम. प्रीवियस केस में जब बीच में निकाला था तो माइनस किया था, अब यहाँ पे आप प्लस करेंगे. ठीक है, तो पुट करेंगे वैल्यूज. तो के, अब इस टाइम इस बार क्या है, डिस्टेंस डिफरेंट है. Q2 के लिए डिस्टेंस क्या है? R2, और R2 की वैल्यू क्या है हमारी? 0.05 मीटर. और Q1 के लिए डिस्टेंस है R1 और R1 की वैल्यू क्या है हमारी? 0.15 मीटर. ठीक है, दोनों के लिए डिस्टेंस जो है हमारा डिफरेंट है. तो K Q1 बाय R1 स्क्वायर प्लस K Q2 बाय R2 स्क्वायर हो जाएगा ये. अब कुछ भी नहीं करना है इसमें, आप K को कॉमन लोगे, ब्रैकेट में आ जाएगा आपका Q1 बाय R1 स्क्वायर प्लस Q2 बाय R2 स्क्वायर. वी जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज हियर. K की वैल्यू पुट करेंगे, 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9 है. Q1 कितना है हमारा? 0.2 माइक्रोकूलम. तो वी कैन राइट 0.2 माइक्रोकूलम एज 0.2 10 की पावर माइनस 6. R1 स्क्वायर मतलब 0.15 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस Q2 0.4 माइक्रोकूलम है, कूलम में कन्वर्ट कर दोगे, एंड R2 स्क्वायर 0.05 का स्क्वायर हो जाएगा. अब इसको हम सॉल्व कर देंगे. जो कॉमन आ रहा है पहले कॉमन ले लेते हैं और उसके बाद सॉल्व करते हैं. करो इसको.
10⁻⁻6 हम कॉमन ले सकते हैं और ब्रैकेट में आएगा हमारा 0.2 डिवाइडेड बाय 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 होता है ना? तो पुट कर सकते हैं हम यहाँ पे 0.15 का स्क्वायर है 2.25 आ जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 15 × 10⁻²। तो 225 × 10⁻⁻4 हो गया। अब बताओ डेसिमल कहाँ आएगा? 0.225। हाँ जी, तो गलत बोला था ना? 0.4 और 0.05 का स्क्वायर है तो उसको हम 5 × 10⁻² लिख सकते हैं। स्क्वायर लेंगे तो 25 × 10⁻⁴ हो जाएगा। तो कहाँ आएगा डेसिमल? 0.08। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे प्लीज। और इसको थोड़ा इजी भी कर सकते हो आप कि आप 10⁻⁻4 ये डेसिमल्स को आप कट भी कर सकते हैं ना। हम्म जैसे जो आप ये कर सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग लाइक दिस 10⁻⁻4 तो आ ही रहा है दोनों में, है ना? तो हम 10⁻⁻4 को बाहर ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप इसको 225 ही रहने दें और यहाँ पे आप इसको 25 ही रहने दें। तो ये 225 और 25 ही रखें यहाँ पे, और जो 10⁻⁻4 जो साथ में जुड़ा हुआ है इसके, उसको आप बाहर लिख लें। ये काम हम कर सकते हैं। और इधर भी 10 की पावर आपका ये जो है 0.2 है और 0.4 है, तो 10⁻⁻1 आता है नो। 2 उसको भी बाहर आप करके सॉल्व कर सकते हो। मतलब आपको आपको देखना है कि कैलकुलेशन को आप कितना इजी कर सकते हो। प्लीज फाइंड द आंसर। Nine minus 6 is 3. 3 plus 4 is 7. इंटू 10⁻⁻1 कर सकते हैं और यहाँ पे आ जाएगा 2/225 प्लस 4/25. So in this question we have 2 points A and B. The coordinates are given. Point A is 0, 1, 2, it is in meters, and we have a minus 20 microcoulomb charge situated at point B, and point B is, the coordinates are √2, 0 and 1 in meters, and charge is located here, and we have to find the electric field intensity at point A. आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है पॉइंट ए पे। प्रियांशी प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा। ठीक है, you have to find electric field intensity at point A because of the charge at B. Charge is located at B. तो ये जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करोगे ये वेक्टर फॉर्म में फाइंड करोगे। एंड हाउ डू वी फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वेक्टर फॉर्म? इट इज K Q R cube and vector R, right? For this we need two things. एक तो हमें वेक्टर R फाइंड करना है और एक हमें R क्यूब फाइंड करना है। कैसे करेंगे? First write vector R, find vector R. Vector R is vector RA minus vector RB. So how will you write it? 0 minus x coordinates को subtract करेंगे, 0 minus √2 I cap, है ना? हाँ, I coordinates को फिर J वाले coordinates 1 minus 0 J cap plus 2 minus 1 K cap. So what will you get? Minus √2 I cap plus J cap plus K cap. This is your vector R. Now find the magnitude of vector R. How do we find the magnitude? Take the square root and add the squares of all the coefficients, no?
So minus root 2 square plus 1 square plus 1 square. What will you get? 2 plus 1 plus 1, 4. So square root of 4 is 2 meter. Now, this is a vector notation for electric field intensity. So electric field intensity vector E is K Q by R cube vector R. Now put the values here. The value of K is 9 times power 9. Q is minus 20 microcoulomb. So we can write minus 20 into 10 power minus 6. Vector R is this, and R cube is 2 cube. And vector R is this, we have just found out. Put the value here, simplify it, and you'll get your answer. करो. हाँ जी, हो गया. बस वो मल्टीप्लाई कैसे होगा उसमें? पहले तो इसको सॉल्व करेंगे बेटा. ये जो आपका है इधर वाला, जो इसको सिंप्लीफाई करो. माइनस 180 आ गया ना ये, इंटू 10 की पावर 9 माइनस 3 9 माइनस 6 है तो 3 हो जाएगा, और नीचे 8 आ गया. और यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस रूट 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप. प्रियांशी प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा. अब इसको डिवाइड कर देंगे. सॉल्व करना सिंपल जैसे करते हैं, करो. आई कैप जे कैप के कैप ऐसे ही रहेगा? हाँ जी, ऐसे ही रहेगा बेटा. इसको जब आप डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? 180 बाई 8. 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4. यहाँ आपका 45 आ गया, ये 45/2. ठीक है, तो ये आपका आ गया 22.5, 22.5. 22.5 इंटू 10⁻³ आ गया, माइनस रूट 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप. We have 2-point charges plus 3q and minus 4q. They are placed at the vertices B and C of an equilateral triangle ABC of side A. Obtain the expression for the magnitude and the direction of the resultant electric field at the vertex A due to these two charges. So first draw an equilateral triangle. Draw the triangle first. This is an equilateral triangle, so all sides are equal. तो ये ABC equilateral triangle है. Side है इसकी A. आपका जो plus 3q charge है, it is placed at the vertex B. So plus 3q is placed here, and minus 4q is placed at C. Minus 4q is placed at C, and we have to find the magnitude and the direction of the resultant electric field at the vertex A due to both the charges. So first of all, we need to understand the directions. राइट, यहाँ पे ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ऑल साइड्स आर इक्वल. अब बिकॉज ऑफ द चार्ज एट बी, ठीक है, चार्ज जो बी पे है आपका वो पॉजिटिव चार्ज है, राइट. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज. ऐसे away from positive. है ना. तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी, है ना. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ द चार्ज प्लेस्ड एट बी. पॉइंट ए पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? ई बी है. बी चार्ज की, बी पे जो चार्ज है उसकी वजह से, और उसकी डायरेक्शन ये होगी अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज. सो वी कैन राइट ई बी एज के एंड द चार्ज इट इज 3q, नो, डिवाइडेड बाय ओवर स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. दिस इज हाउ वी राइट. तो ये आपका आ गया 3kq अपॉन a स्क्वायर. नाउ लेट्स कंसिडर अनदर चार्ज माइनस 4q. अब माइनस 4q का डायरेक्शन क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का? वी हैव अ नेगेटिव चार्ज नाउ. Towards. वेरी गुड, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज. सो दिस इज द डायरेक्शन. ठीक है, नाउ राइट द एक्सप्रेशन फॉर इट.
तो EC, this is the electric field intensity because of the charge, you know, at C, जो -4Q चार्ज है, बिकॉज ऑफ दिस चार्ज यहां पर पॉइंट ए पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इस चार्ज की वजह से, है ना, अगर कोई चार्ज है तो पॉइंट ए पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी r डिस्टेंस पे, तो KQ/r² होती है, राइट? वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला ओनली। ठीक है, तो अब ए पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है बिकॉज ऑफ द चार्ज एट सी इज K। अब क्या लिखेंगे हम? एंगल बिटवीन दीज टू E's इज, फरहान, ये It एंगल will कितना be होगा? 120. 120 डिग्री होगा, क्योंकि आपका जो ये वाला एंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये 60 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा आपका? 60 होगा. 120 डिग्री, राइट? तो अब अगर एंगल 120 डिग्री है तो वी कैन फाइंड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगी यहाँ पे, कैसे फाइंड करोगे? उसकी डायरेक्शन होगी ये, है ना, ये आपका नेट ई आ गया। ठीक है, हम कैसे फाइंड सॉल्व करेंगे? करके निकाल सकते हैं. इसका जो फॉर्मूला था आपका r का स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर EB², फिर सेकेंड वेक्टर का स्क्वायर एंड देन 2EB EC and the angle between these two vectors is 120 degree. Now just substitute the values here. तो E क्या आएगा आपका? E आएगा स्क्वायर रूट ऑफ, पहले EB के लिए लिखेंगे हम 3KQ/a² का होल स्क्वायर, है ना, फिर 4KQ/a² का होल स्क्वायर एंड देन 2, फिर EB लिखेंगे 3KQ/a² एंड देन EC 4KQ/a² एंड cos 120 डिग्री इज -हाफ। कैसे आया ये? वी कैन राइट 120 एज 180 - 60, है ना, एंड cos 180 - 60 इज -cos 60 डिग्री एंड -cos 60 डिग्री इज -हाफ। क्लियर? अब तो ये क्या आ गया? 9। अच्छा, इसमें सब में आपका KQ/a² का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे है ना, KQ/a² का होल स्क्वायर है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो KQ/a² का होल स्क्वायर आएगा। तो होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट के अंडर है वो, तो बाहर जाके क्या हो जाएगा? KQ/a² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब अंदर क्या बचा? 3 3 9 प्लस 4 4 16 प्लस 3 4 12 12 2 24 और फिर -हाफ साथ में रह गया। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ तो बताओ मुझे। हम 2 और हाफ कैंसिल हो जाएगा ना, लाइक हाँ 2 जी, माइनस रह जाएगा। चलो हम 2 और हम हाफ को कैंसिल कर सकते हैं, जो हाँ जी, वो भी कर सकते हैं, हाँ। तब भी -12 आ जाएगा, तो 9 + 16 इज 25, 25 - 12 इज √13, नो? यही आएगा, कुछ और आएगा? तो √13 यही आएगा। 2/a²। ये तो आ गया आपका मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। जो फर्स्ट आपका था पार्ट, आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना था रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का। सेकंड आपको क्या फाइंड करना है? डायरेक्शन। क्या फाइंड करना है? डायरेक्शन। देखो यहाँ पे दो हमने डायरेक्शन फाइंड कर लिया ऑलरेडी, है ना, डायगोनल होता है डायरेक्शन, ठीक है, वो हमने फाइंड कर लिया है। बट आपको इसका एंगल फाइंड करना है। एंगल कैसे फाइंड करते हैं हम? अगर दो वेक्टर्स गिवन है और रिजल्टेंट वेक्टर भी पता है तो b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा, याद है? याद है या नहीं याद है? यस 11th क्लास में किया था। अच्छा, अब ये हम क्लियर कर दें ऊपर से। ये हो गया ना इतना? तो चलो, अब इसका आप मैग्नीट्यूड तो आपने फाइंड कर लिया। नाउ प्लीज फाइंड द डायरेक्शन। डायरेक्शन फाइंड करेंगे 10 अल्फा। अल्फा क्या है? जो रिजल्टेंट एंगल, जो रिजल्टेंट वेक्टर फॉर्म कर रहा है विद EB। अल्फा इज द एंगल दैट रिजल्टेंट मेक्स विद
EB. ठीक है, ये वाला एंगल tan अल्फा इज B sin थीटा EC sin 120 डिग्री, ऐसे लिखेंगे B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा, ये फॉर्मूला है आपका। तो EC sin 120 डिग्री अपॉन ओवर EB प्लस EC cos 120 डिग्री। फाइंड करो। EC क्या था आपका 4KQ by A square, sin 120 is sin 180 minus 60, sin 60 is root 3 by 2. अब नीचे EB प्लस EC करेंगे, EB is 3KQ by A square plus EC is 4KQ by A square cos 120 डिग्री is minus हाफ। ये भी हमने यहाँ पे किया है, ये माइनस cos 60 होता है। सॉल्व करेंगे इसको एंड गेट द वैल्यू, you'll get an expression, no? और इसमें से माइन आपका ये कॉमन निकल जाएगा, you'll get a number then. इसमें KQ by A स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो KQ by A स्क्वायर को आउटसाइड लिखते हैं, सेपरेटली लिखते हैं, सो दैट वी कैन कैंसिल इट। और यहाँ पे 2 1s are 2, 2 2s are 4 हो गया, 2 root 3 आ गया। और डिनोमिनेटर में अगेन वी कैन राइट KQ by A स्क्वायर एंड इन द ब्रैकेट वी कैन राइट 3 प्लस, अब यहाँ 2 1s are 2, 2 2s are 4 करेंगे तो -2 आएगा ना, 3 - 2 is 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका KQ by A स्क्वायर, और यहाँ पे नीचे 1 आ गया, तो यू आर गेटिंग 2 root 3। तो ये आपका एंगल है जो रिजल्टेंट फॉर्म कर रहा है विद EB। So we have found out the direction of vector E as well.